And now, O you priests, this commandment is for you. If you will not hear and if you will not lay it to heart, to give glory to my name, says Jehovah of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yea, I have cursed them already because you do not lay it to heart. Behold, I will corrupt your seed and spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feasts, and one shall take you away with it. And you shall know that I have sent this commandment to you, that my covenant might be with Levi, says Jehovah. My covenant was with him of life and peace, and I gave them to him for the fear with what he feared me, and was afraid before my name. The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lip. He walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity. For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth. For he is the messenger of Jehovah. But you are departed out of the law. You have caused many to stumble at the law. You have corrupted the covenant of Levi, says Jehovah. So I have also made you contemptible and base before all the people, according as you have not kept my ways, but have been partial in the law. Have we not all one Father? Has not one God created us? Why do we deal treacherously every person against his brother by profaning the covenant of our fathers? Judah has dealt treacherously, and abomination is committed in Israel and in Jerusalem. For Judah has dishonored the holiness of Jehovah which he loved, and has married the daughter of a strange God. Jehovah will cut off the person that doing this, the master and the scholar, out of tabernacles of Jacob, and him that offering to Jehovah of hosts. And this have you done again, covering the altar of Jehovah with tears, with weeping, and with crying out, insomuch that he regards not the offering anymore, or receive it with goodwill at your hand. Yet you say, why? Because Jehovah has been witness between you and the wife of your youth, against whom you have did treacherously. Yet is she your companion and the wife of your covenant. And did not he make one? Yet had he the residue of the Spirit. And why one? That he might seek a godly seed. So take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. For Jehovah, the God of Israel, says that he hates putting away. For one covers violence with his garment, says Jehovah of hosts. So take heed to your spirit, that you deal not treacherously. You have wearied Jehovah with your words. Yet you say, in what way have we wearied him? When you say everyone that doing evil is good in the sight of Jehovah, and he delights in them, or where is God of judgment? अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे ना सुनो और मान लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं, उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मान नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा, और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पारुओं की याज्ञा पशुओं का माल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगी। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको ये आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरे बंधी हुई वाचा बनी रही। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, वो जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वो भाई मनता रहे, और उसने मेरा भाई
मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वो शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को आराम से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करें और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी के वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। क्या तुम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों के वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इसराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पारय देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा के बैत चराने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रेंगन रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगा दिया है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे भेद की और दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसका तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री से त्याग घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढकता है। इसलिए तुम अपना आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा के यही वचन है। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उकता दिया? इस समय कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वो ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और ये कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है।